Hello student, in this video we're going to discuss about blood grouping. Since blood grouping is a very important technique we usually used to do in blood bank, and there are different types of methods through which we can do blood grouping, and in this video we're going to see what is the principle behind doing blood grouping, what are the different methods which are available, how to proceed with the blood grouping. So let's start. uh, Blood grouping is nothing but it is based on the principle of your RBC or erythrocyte, which contains a certain antigen in the surface of their RBC, surface of their membrane. So, say for example, there are two types of antigen which are present. So, it can be either A antigen, or it can be either B antigen. So, depending upon what type of antigen which is there available in the surface of your RBC, you have a different blood group. So it was first discovered by Karl Landsteiner in 1900. So because of that, he from that moment onwards he had discovered ABO blood grouping. See, there are different types of blood groups in an individual. Like a person can belong to blood group A, person can belong to blood group B, plus person can belong to blood group AB or O. So that comes under ABO blood grouping. But then there are different other blood groups also which are available, but they are very minute in quantity, like Kell, Duffy, Lewis, etc. So, but we are going to concentrate on ABO blood grouping in this video. For now, what is the application? Why we have to do blood grouping? See, blood grouping is very much important, especially in the transfusion therapy. Say for example, if somebody requires a blood, which due to emergency, or he met with an accident, अगर उसको blood जरूरी हो गया, so we cannot give a random blood to a patient. So we have to do a compatibility test, or we have to do ABO blood grouping to identify which blood group he or she belongs to. And अगर blood group matching है, तभी हम लोग उसको blood दे सकते हैं. So that is why it is very much important for you to understand what is blood grouping and how to do blood grouping. So basic principle behind ABO blood grouping है कि मतलब जब कार्ल लैंडस्टेनर ने आइडेंटिफाई किया ब्लड ग्रुपिंग in 1900, what he did, he has a 5 colleague, and what he did, he tried to mix the blood of each and every individual from one person to another person. एक दूसरे का ब्लड को अगर आप उन्होंने मिक्स किया तो देखा कि वो उसमें अग्लूटिनेशन हो रहा है. So that was the main important the main processing through which he discovered ABO blood grouping. So why there is in clumping? तो आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड होता है कि आपके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन है और आपके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है. अगर आपके से फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल आप देख रहे हो, अगर आपका ब्लड ग्रुप आपका आरबीसी जो आरबीसी है, आपके आरबीसी के सरफेस में आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है. अगर आपके आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है तो आप ए ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं. लेकिन आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा. माने यू नेवर कैरी अ सिमिलर टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन वन इंडिविजुअल. यू नॉट एबल टू सी अ सिमिलर टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन वन इंडिविजुअल. सब हमेशा ऑपोजिट रहता है. तो सपोज आपके ब्लड ग्रुप आपके आरबीसी में ए एंटीजन है तो आपके प्लाज्मा में अलग एंटीबॉडी या फिर ऑपोजिट एंटीबॉडी होगा, वो है एंटीबॉडी बी, लेकिन आप ब्लड ग्रुप ए में बिलोंग करोगे. ठीक है. सिमिलरली इफ यू आर ब्लड ग्रुप बी, आप अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपके सरफेस आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन होगा, लेकिन आपका एंटीबॉडी ए होगा. सिमिलरली आपका अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसी के सरफेस में दोनों एंटीजन होंगे. एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, बट आपके यहाँ में एंटीबॉडी नहीं होगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा. सिमिलरली अगर आप ब्लड ग्रुप ओ को बिलोंग करते हैं तो आपके आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन आपके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज रहेंगे. सी दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन आपके आरबीसी में है और व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में है,
उस दोनों चीज के आधार पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए हर इंडिविजुअल के पास अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, अगर आप ब्लड ग्रुप ए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एमसीक्यू। ओके, सो अगर इफ यू आर ब्लड ग्रुप ए, इफ यू आर ब्लड ग्रुप ए, you'll have A antigen and antibody B. If you have blood group B, you'll have B antigen in the RBC and antibody A in the plasma. If you belong to blood group AB, तो आपके पास दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन आपके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा. Similarly opposite, if your blood group belongs to blood group O, if you belong to blood group O, then no antigen in the surface of your RBC, but you have both the antibody. So that is the basic principle. So I hope you're clear. Next is when you do blood grouping by slide method, there are different types of techniques, like slide techniques are there. There are test tube techniques are there, but we're going to concentrate on only slide techniques. हाँ, तो अगर आप slide technique करोगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो आपको glass slide चाहिए, पैक्चर पिपेट चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक्स चाहिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए, और you also need certain reagents which is commercially available, like you have to have antisera A, which is blue in color, and you require antisera B, which is yellow in color. Okay, so these are all monoclonal antibody only. So these are antibody. Okay, so procedure is nothing but what you have to do. You have to take a clean glass slide. You have to divide the section into two halves. See, I'm giving you the procedure, I'm telling you the procedure for now, but we're going to see in the next video, we're going to practically see how we can do it. Okay, so agar aap procedure karte hai, तो you need a glass slide. What you have to do, you have to divide the glass slide into two half. कोई marker pencil लेके आपको भाग करना है और डिवाइड सेक्शन में करना है. एक सेक्शन में आपको ऊपर में A लिखना है, दूसरा सेक्शन में you have to write B. Understand? Okay, after doing that, after doing that, what you have to do, you have to add 1 drop of antisera A. जो ब्लू में था उसका 1 ड्रॉप आपको A में लगाना है, जहां में आपने A मार्क किया था. उसके बाद you have to add 1 drop of antisera B in the other side where you have marked B. Okay, then after that what you have to do, you have to add 1 drop of blood to be tested in the each box. दोनों बॉक्सों में एक एक ब्लड डालना है. तो आप यहाँ में क्या देख रहे हैं, यहाँ में आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा कि नहीं देख रहे हैं. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा कि नहीं देख रहे हैं, जहाँ में आपने एंटीबॉडी ऑलरेडी लगा लिया है ना, ऑलरेडी लगा लिया. जैसे एंटीसेरा ए एंड एंटीसेरा बी इज ए एंटीबॉडी. अगर आप ब्लड सैंपल लगा रहे, दैट मीन्स यू आर पुटिंग एंटीजन देयर. सो आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं वो आप देखना चाहते हैं ना. सो आफ्टर डूइंग दैट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मिक्स इट विद एन एप्लीकेटर स्टिक नाइसली, और बाय टिल्टिंग द स्लाइड बैक एंड फोर्थ यू हैव टू एग्जामिन द एग्लूटिनेशन, रिएक्शन हुआ कि नहीं. ठीक है, अगर आप मतलब वहां में अगर आपने क्लम्प देखा या फिर एग्लूटिनेशन देखा तो वो टेस्ट पॉजिटिव कहलाया जाएगा. और अगर आपका कोई भी मतलब एकदम एग्लूटिनेशन नहीं है, एकदम क्लीन ब्लड आप देख रहे हो, तो वो रिजल्ट आपका नेगेटिव किया जाएगा, देखा जाएगा. ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन में ये आप ये स्लाइड देखिए. Say for example, I have told you this is suppose one glass slide में आपने डिवीजन करके रखा हुआ है. एक को आपने एंटी ए मार्क किया था, एक को आपने एंटी बी मार्क किया था. तो यहाँ में हम लोग ने एंटी ए का ड्रॉप एक लगाया, एंटी बी का एक ड्रॉप लगाया. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ब्लड लगाया. ब्लड दोनों मिक्स करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ में एग्लूटिनेशन हो रहा है, यहाँ में एग्लूटिनेशन नहीं है. तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा. ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा. व्हाई? Because see, if this is a blood group A, that means what? The RBC is carrying what antigen? The RBC is carrying A antigen. अगर आप A antigen वो RBC कैरी कर रहा है और आप एंटीबॉडी भी A लगा रहे हो, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एग्लूटिनेशन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ में आपको एग्लूटिनेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ में RBC के सरफेस में A एंटीजन है, तो अगर आप B भी लगाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को नोटिस भी नहीं करेंगे. दैट मीन्स देयर इज नो एग्लूटिनेशन. ओके, सिमिलरली अगर आपका ए में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आया, बी में एग्लूटिनेशन आ रहा है, दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप बी. बिकॉज सी, अगर आप ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन कौन सा रहेगा? बी रहेगा. तो बी
अगर आप रहेगा, तो अगर आप एंटीबॉडी भी बी लगाएंगे तो वो दोनों रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स बोथ द एंटीजन बट दे डोंट हैव एनी एंटीबॉडी। तो आपके अगर आप ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसी के सरफेस में दोनों एंटीजन्स है, एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है। तो अगर आप दोनों एंटीजन रहेगा, तो अगर आप कोई भी एंटीबॉडी लगाएंगे तो रिएक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं ए में भी रिएक्ट किया, बी में भी रिएक्ट किया, दोनों में एग्लूटिनेशंस आ गए। तो दोनों में एग्लूटिनेशंस आ गए माने ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है। सिमिलरली इफ अ ब्लड ग्रुप इज ओ और somebody इज ब्लड ग्रुप ओ, तो अगर आप देख रहे हैं दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं आया, व्हाई? बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं रहता, सिर्फ एंटीबॉडी रहता है। तो अगर आप फिर भी एंटीबॉडी लगाएंगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा, इसीलिए उसमें कुछ भी रिएक्शंस नहीं होंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। if you have any questions, please comment in a comment box, and next video में हम लोग इस blood group को practically करने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।